پریشانی ہے یا کسی چیز کی تلاش ہو تو بیان کیجیے، ہم نوجوان لوگ تو آپ ہی کی خدمت کے لیے ہیں، آپ کہیں آپ کی تمام باتوں پر توجہ دی جائے گی۔ ارے بیٹا کیا کہوں، میں بہت دن سے پریشان ہوں اور اپنے گھر کی خستہ حالی سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ کئی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہے جس کی نسبت کے لیے کئی سالوں سے پریشان ہوں، اور اسی وجہ سے آج نکلا ہوں کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور خدا کا مجھ پر کرم ہو جائے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور آپ اس میں کچھ میرا تعاون کرے تو بڑی مہربانی ہوگی، ضرور کریں۔ آپ زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والے آپ پر رحم کریں۔ بابا بس اسی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اس قدر پریشان ہے، مجھے آپ کے حال پر بہت ترس آ رہا ہے۔ اگر اس علاقے کے کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے ماسٹر حجر ابن حشب کا نام پوچھ کر میرے یہاں آ جاتے تو آپ کو اتنی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑتی۔ اس علاقے کے تو سبھی لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرے دو بیٹے بالکل جوان ہیں جن کے رشتے مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی تب تو بہت اچھا ہے، اللہ کرے رشتہ طے ہو جائے اور ساری بات یہی ہو جائے اور مجھے دور دراز کہیں بھٹکنا پڑے۔ آپ ابھی سے ہی مجھے خبر کر دیں تاکہ میں ابھی سے ہی انتظام میں لگ جاؤں۔ بابا آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، میری بھی یہی رائے ہے۔ اچھا تو آپ دہیز میں کیا کیا سامان دیں گے تاکہ اسی وقت اندازہ ہو جائے، کیونکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ گزشتہ سال میں اپنے بڑے بیٹے کی شادی میں نے کی ہے تو ایک موٹر سائیکل، فرج سلائی مشین وغیرہ بہت سے قیمتی سامان ملے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ تو جانتے ہیں کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، سامانوں کی قیمت میں گرانی آتی جا رہی ہے، تو بھلا بیٹوں کی قیمت میں گرانی کیوں نہیں آئے گی، جبکہ بیٹے تو بہت ہی محنت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ارے بھائی میرے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اتنا آپ کو دے سکوں۔ صرف 300 کی پرانی سائیکل اور یہ 25 روپے کی گھڑی لایا ہوں، سوچا تھا کہ مجھے اتنا ہی میں کام چل جائے گا۔ بابا سنیے ذرا، ناراض مت ہو، آخر کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ میں نے کون سی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ بالکل دل برداشتہ ہو گئے، جبکہ آپ تو تجربے کار آدمی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے ہوائی جہاز یا ٹرین کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ انہی چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہوں جو رائج ہے تاکہ آپ کے لیے زیادہ بھاری نہ ہو۔ اور دنیا کے اپ ٹو ڈیٹ تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھے ہو؟ نکاح و شادی کو جو کہ اسلام میں ایک عبادت ہے، تم اسے اپنے گھر کی لونڈی سمجھ رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے اسلامی معاشرہ کے لیے اور دنیا سے جہیز کے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے شب و روز ایک کر رکھا ہے، اور تم جیسے ناداروں نے اسے سامان جہیز بنا رکھا ہے۔ ارے شرم کھاؤ، میں ابھی اصلاحی معاشرے کے تحت ایک پروگرام میں جانے والا تھا، جیسے میرے رفیق نے مجھے خبر دی میں نے فوراً پروگرام کو ملتوی کر یہاں آنے کی جرت کی تاکہ تمہارے دماغ کو ٹھنڈا کر سکوں۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری وجہ سے اتنی تکلیفیں اٹھائی۔ یہ میری طرف سے 5 روپے لیجیے، چائے پی لیجیے گا۔ بابا ذرا تھوڑی دیر خاموش رہے، اس دوران ادھر ادھر کی بات مت کیجیے، ذرا مولانا صاحب سے ذرا کچھ باتیں کرنے دیجیے جو بڑے کرو فر سے بات کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے جو طرز گفتگو اپنایا ہے اس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ دور رواج کے مطابق وہ شادی کر سکے تو اسے شادی کی کیا ضرورت، وہ شادی ہی نہ کرے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو یہی مناسب ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر خلوت میں جا کر اللہ کی عبادت کرے، انہیں تو دنیا کے ان جھمیلوں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ ارے آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں اور اپنی حماقت خود لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمرد سخن نہ گفتہ باشد و عیب ہنر نہ ہوتا باشد۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اسلام اور اس کی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تجرد و رہبانیت دنیا اور دنیا سے بیزاری اسلام کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ آقا انعام دار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا رہبانیت فی الاسلام فرما کر ان
लोगों पर लतीफ़ तंज फरमाया है। और खुदा तलबी के लिए जो शख्स दुनिया को ज़रूरी समझते हैं और नौजवानों की जमात से मुखातब करके फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ुस्सु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, कि तुम में से जो शख्स शादी की ताकत रखता है उसे चाहिए कि शादी कर ले, क्योंकि इससे निगाहें नीचे रहती है और शर्मगाह की हिफाजत होती है। और दूसरी हदीस में फरमाया, मन कान मुस्लिमन अन यतज़व्वज थुम्मा लम यतज़व्वज फलैसा मिन्नी, कि जो शख्स शादी की ताकत रखने के बावजूद भी इससे गुरेज करे वो हम में से नहीं है। इन तमाम अहादीसों की रोशनी में आपको मालूम हो गया होगा, ज़रा आप अपने गिरेबान में सर डालकर सोचें कि आप माली व असबाब के रो में बहकर जो कुछ कहते जा रहे हैं, क्या आपकी बातें हदीस से मेल खा रही है या नहीं? मौलाना, आप तो अपनी सारी बातों का निशाना मुझे ही बताते चले जा रहे हैं, बल्कि मैं ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इस जहालत में मुब्तला है और इस्लाम के इन अहकाम से बेखबर है। और मगर आप है कि मुझे इस तरीके से मुखातब बनाकर तकरीर कर रहे हैं कि ऐसा लगता है गोया मैं ही इन रस्म रिवाज का मौजूद हूँ और मुझसे ज़्यादा बड़ा दुनिया में आपकी नज़र में कोई है नहीं। मेरे भाई, आप नाराज़ मत हो, मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक हकीकत का इजहार कर रहा हूँ। आपके लिए खुसूसन और अहम मशरबों के लिए अमूमन एक इस्लाही पैगाम है। मेरी ज़िंदगी के हवस ने निकाह जैसे आसान तर मसले को दुश्वार बना कर रख दिया है और माशरे में ये रुझान आम होता चला जा रहा है कि शादी नौकरी पर मौकूफ समझी जा रही है, जिसकी वजह से निकाह पर जो असर पड़ रहा है वो रोज़े रोशन की तरह आया है। मौलाना साहब, आपने बिल्कुल हक बात कहा। इस बात से ये बात तो मेरे दिल को चीर फाड़ करने वाली बात ने आप कहा, और मुझे ही नहीं सिर्फ और सिर्फ ये जितने सामईन बैठे हैं सबको दिल पे असर करने वाली बात है। मौलाना साहब, आपने निकाह के सिलसिले में जो बातें बयान की वो तो वाक़ईतन काबिल तस्लीम है और अब तक उनसे नावाकिफ़ था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप लोग दहेज देने और लेने से क्यों रोकते हैं। उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, इक़्तिसादी तरक्की होती है। कितने गरीब मोहताज और नादार किस्म के लोग ऐसे ही जिनके औलाद का रिश्ता किसी मालदार घराने से हो जाता है तो उसके घर की मफलूक अलहाली दूर हो जाती है, और कितने घर ऐसे हैं जिनके आंगन में अंधेरा रहता है और साहिब सरवत से जब उनका ताल्लुक हो जाता है तो उनका आंगन में उजाला हो जाता है और उनका घर जगमगाने लगता है। आखिर ये खुश ऐसी किस चीज़ की बदौलत है? जाहिर है कि उसका असल सबब निकाह और दहेज है, और फिर कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी और दामाद खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। मगर ये शरीर बुढ़े और बखीली ऐसे हो सकते हैं जो अपने दामाद को 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपया वाली प्लास्टिक की घड़ी देकर खुद भी तंगी ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने रिश्तेदार को भी तंगी में रखना चाहते हैं। भाई, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है और इतनी कारोबार भी नहीं है कि मैं आपके लिए हीरो होंडे और एसी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप, मारुति बस, कार, इतने चीज़ से तो हमको नहीं होता भाई। हम कहाँ से देंगे आपको? हमने भी इरादा किया था कि अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे के घराने में शादी कर देंगे। हम इसमें सक्सेस नहीं होते। अरे अरे, तुम तो बड़े हरीस और लालची तबीयत इंसान मालूम होते हो, तभी तो जहेज की सारी खराबियाँ तुम्हारी निगाह में भली मालूम होती है। और तुम्हारी निगाह ने उस बात पर जाकर ठहरी कि किसी मालदार की घराने में शादी हो जाने की सूरत में माल व असवाब की ज़्यादती होती है, आंगन में उजाला होता है। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जहेज लाने वाली बीवी का शौहर के साथ कैसे माशरत रहता है? वो अपने आप को माल व दौलत के नशे में पड़कर शौहर को और अपने आका को गुलाम समझने लगती है, और जब कभी भी कोई बहम नाचती होती है तो अपने सामान्य जहेज का हवाला देती है। नतीजन शौहर की जिंदगी अजीरन बन जाती है, जिसकी वजह से शौहर का एक मिनट गुजारना मुश्किल तरीन मसला बन जाता है। मगर तुमने कभी नहीं सोचा, तुमने ये सोच लिया कि शादी करने से माल व असवाब की ज़्यादती होती है, इक़्तिसाद की तरक्की होती है, मगर तुम्हारे बेरहम दिल में कभी ये ख्याल नहीं गुजरा कि उन नादार बेटियों के लिए सामान्य जहेज कहाँ से आएगा। उन नादार बेटियों की जब जवानी की जौवन चढ़ने लगेगी और उन गुलाब रंगियत के जब
पंखेरिए नजाकत के रक्स करने लगेंगे तो उनके हाथ को कौन पीला करेगा। एकाश तुमने तारीख का मुताला किया होता, तुमने कभी अपने आप को सोचा होता कि कितने जवान अफराद ऐसे हैं जो अपनी जवानी की वजह से, अपनी माली तबाही की वजह से घर के अंदर ऐसे अधेर पर और बुढ़ापे तक शादी नहीं कर पाए और सोचते हैं कि आखिरकार ये नया माली बजट कहाँ से पूरा होगा। अफसोस कि शादी जो कभी खाना आबादी का पेशे सिमा और जमीमा हुआ करती थी, मगर आज शादी बर्बादी की मुरादी बन चुकी है। तुम जैसे नादारों ने दौलत के नशे में पढ़कर इस्लाम और अहकाम इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया है, मगर जिसका खमियाजा हर एक को भुगतना पड़ रहा है। इस वजह से जरा आप अपने गिरेबान में डालकर सोचें। मौलाना साहब आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप तो भी तस्लीम करें कि दहेज देना बायस फख्र है। इससे लड़की वालों की शान और शौकत का मुजाहरा होता है, जगह जगह उनका चर्चा होता है और लड़की वाले की शोहरत होती है, जिससे उसका लड़की वालों की शोहरत होती है, जिससे उसकी इज्जत व अजमत और वक़ार में इजाफा होता है। अरे जहेज और काबिल फख्र जहेज और इज्जत व अजमत के इजाफे का सबब, अरे अपने दिल से फरसूदा ख्याल को मिटा दीजिए। और खलीफे दो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर जहेज काबिल फख्र होती, अगर जहेज इज्जत व अजमत में इजाफे का सबब होता तो सबसे अव्वल मुस्तहक़िन ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और आप अपने अज़वाज मुतहरात को गिरा कर पहनवाते और आप मक्का की रईसों और सरदार की बेटियों के यहाँ पैगाम निकाह भेजते और अपने लख्त जिगर नूर नजर हजरत फातिमा रुकैया ज़ैनब कुलसूम को जहेज में सोना व चांदी के अंबार लगा देते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हरगिज़ पसंद नहीं किया, क्योंकि आपको एक इस्लाही माशरा कायम करना था और उम्मत को ये दर्स देना था कि जहेज से माल व असबाब की ज़्यादती नहीं होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न अअज़मन निकाह बरकतन अयसरहु मऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च और कम लागत आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको करके दिखलाया और उम्मत के सामने भी करके दिखलाया और आप सहाबा ने भी किया, ताबीन ने किया, दुनिया के तमाम अफरादों ने किया। मगर आज के नौजवान इस जहेज में पढ़कर अपने आप को जहेज का मुतालबा करते हैं। इस वजह से मैं तमाम नौजवानों से मुखातब और आपसे खुसूसन मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि नबी के रास्ते से जो कदम हटाएगा कभी रास्ता ना पाएगा, कभी मंजिल ना पाएगा। मौलाना साहब आपकी बात तो मौलाना साहब आप तो सही बात बोल रहे हैं, मौलाना साहब आप तो सही बात बोल रहे हैं। इससे दहेज और देना बायस फख्र है, इससे लड़की वालों की शान व शौकत का मुजाहरा होता है। अगर आपका इसका शुक्रिया ज़िंदगी भर तक आपके शुक्रिया अदा करते रहूं तब भी इस एहसान का बदला नहीं हो पाएगा। यकीनन अभी तक मैं इस अहकाम से नावाकिफ था, लेकिन अब मैं इंशाअल्लाह तौबा करता हूँ कि अब इस दहेज लेना बंद कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना साहब आप इनसे कह दीजिए कि हमारी लड़की से अपने लड़के का शादी कर ले। बाबा घबराइए मत, इंशाअल्लाह इसी साल मैं अपने बेटे की शादी मैं आपके शहजादी से करा दूंगा और आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। हमें सिर्फ लड़की बाअखलाक और नेक सीरत मिलनी चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों और दोस्तों, BIC कोर्ट में आप लोग का फैसला मैं रख दूंगा। उसके बाद मोदी साहब आएंगे तो फैसला करेंगे या कोई मौलाना। ठीक है चलते। अच्छा मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।